Jain students, welcome to the GMDI Academy. My name is Arvind Singh and I am one of the English trainers at GMDI Academy. So in this video, we are going to discuss the weightage of English segment in the IMU CET. So we are going to discuss the syllabus on the basis of last 3-year questions from 2023 to 2025. So I will divide the syllabus into two parts. The first one is grammar and the second one is vocabulary. As we know, there are two segments, grammar and vocabulary. So I have already broken it down. So you can see this is the chapter wise weightage. So if you talk about grammar, there are 5 topics. The first one is tense. From tense, as per the trend, 3 to 4 marks. The questions carrying 3 to 4 marks are asked. So basically, the total weightage of English segment in the IMU CET is 40 out of 200, which is 20%. So out of that, tense carries 3 to 4 marks. Conditionals has the weightage of 3 to 4 marks. Voice, when I say voice, we are talking about active and passive. So it could be active to passive or passive to active. Active to passive or passive to active. So you can see this chapter is very important in terms of weightage. So 7 to 9 marks. The question of 7 to 9 marks are asked from this particular topic. Then I was able to see a couple of questions from modal verbs as well. Modal verbs or modals like can, could, may, might, shall, should. And then subject of agreement, 1 to 2 marks out of it, and prepositions, a couple of marks. So the total weightage is around 15 to 20 marks. So basically out of 40 marks, roughly 40 to 50% is from the grammar segment. And when we talk about vocabulary, so here we have 4 different things under vocabulary. First one is synonyms. Synonyms, as we know, they are the words with similar meaning. And then we have antonyms, words with opposite meaning. Then we have one word substitutions. So this particular segment also carries significant weightage. As you can see, 7 to 9 marks. This particular chapter carries 7 to 9 marks. So one word substitution is what? It is basically there is a group of word and you have to replace it or you have to substitute that particular group of words with a single word. For example, if you say, what do you call a person who loves his country or who is devoted towards his country? So that person is called patriot. If a person writes a book on the life history of his own life events and all these things, so that is called autobiography. So that comes under one word substitutions. And then finally we have idioms and proverbs. In the year 2024 and to 2025, I did not see any questions popping up from this particular segment. So idioms, as we all know that idioms are, it's a group of words that does not have literal meaning. What does that mean? It does not have the word meaning. For example, if I write a drop in the ocean. So a drop in the ocean is not, we don't have to go by the word meaning or the literal meaning. A drop in the ocean, we know that ocean is so huge. And when we compare a drop to the ocean, it simply means that we are talking about a very insignificant thing. So a drop in the ocean means something which is not significant or something of no value or zero value at all. So now the question is how to prepare all these topics. When we talk about tenses, so we could see, when we talk about grammar, we could see voice, active and passive voice, or conditionals and tenses. So these 3 are very important topics. So the question is how we go about these topics. So English is a language wherein everything is not black and white. A gray area has to be there, and it is there. So for that, the only way is to understand things conceptually. I mean, if you try to cram some rules and all these things, it's very difficult for you to
to solve the questions with clarity. So for that, conceptual clarity is very important. So if you feel that any of these topics trouble you, if you feel that any of these topics troubles you to such an extent that every time when you see questions based on conditional, tense, voices, prepositions, modals, or subject verb agreement, you feel like clueless. So in that point of time, what we can do for you is you can comment below that on which topic you need a video, so that we are going to shoot that. So अभी तक जो मैंने आपको बताया है ये ग्रामर और वोकेबलरी का जितना भी वेटेज था उसके बारे में हमने बात करी है. अब ये जो ग्रामर वाला सेगमेंट है इसमें ग्रे एरिया बहुत होता है, मतलब कन्फ्यूजन बहुत होती है. हर बार स्टूडेंट क्या करता है, तुक्का लगाने जाता है. तो अगर कोई ऐसा टॉपिक आपको लग रहा है इसमें से कि जो आपको बहुत ट्रबल करता है और आप चाहते हैं उस पर वीडियो बने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, सो आप कमेंट करिए और मैं उस पर, और हम में से कोई भी, हमारी टीम में से कोई भी उस पर वीडियो बनाएगा और उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दी जाएगी. रूल्स वगैरह की हम बात नहीं करते हैं, इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स. फिर हम बात करते हैं वोकेबलरी की. सो जो वोकैब वाला सेगमेंट है इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स का और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम्स का ये जो वेटेज है, ये मेजॉरिटी ऑफ दिस यू कैन कवर यूजिंग अवर क्रैक IMCT बुक. इसके लिए आप जो हमारी ये क्रैक IMCT बुक है, इसकी हेल्प से आप ये टॉपिक्स आराम से कर सकते हो. जो ये 20 से 25 मार्क्स है. अब मैं आपको कुछ मैं बता दूँ ये कहाँ पे आपको दिखेगा. सो अगर मैं स्लाइड करूँ, लास्ट में जाऊँ, मतलब मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या अलग है इस बुक में व्हेन इट कम्स टू वोकेबलरी. ये हमारी 3 से 4 साल की मेहनत है. अगर आप देखोगे तो ये एक सेगमेंट है यहाँ पे पेज नंबर 294 पे, पेज नंबर 294 पे, और इसका नाम क्या है, कोर वोकेबलरी फॉर एस्पायरिंग मरीनर्स. यानी कि जितने भी मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स हैं वो देखेंगे. अगर आपके लिए वोकेबलरी जो है सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, ये आपको जो है जब आप शिप पे जाओगे तो जो डे टू डे कॉन्वर्सेशन होता है, इवन इन अ फॉर्मल सेटअप, वहाँ पर भी आपको ये काम आएगी. बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं इसमें. ये तो हो गया हमारा वोकेबलरी के लिए. उसके बाद दूसरा सेगमेंट था, अच्छा इसमें हमने ईडीएम ऐड करा हुआ है. ईडीएम्स में क्या होता है कि बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि अलग अलग तरह के ईडीएम्स होते हैं, समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है. तो इसमें हमने क्या करा है, बिल्कुल छांट के कैटेगरी वाइज आपको दिए हैं. जैसे देखो वेदर ईडीएम्स आपको पेज नंबर 342 पे मिलेंगे. वेदर ईडीएम्स, जहाँ पे सिर्फ हम ऐसी ईडीएम्स की बात करेंगे जिनमें वेदर आता है. जैसे यहाँ पे लिखा है अंडर द वेदर. अंडर द वेदर मीन्स फीलिंग अनवेल और सिक. सो आप जैसे काम पे नहीं गए और आप बोलना चाहते, आपके बॉस ने आपको पूछा कि वाई डिड यू नॉट टर्न अप फॉर द वर्क, आप आज आए क्यों नहीं, तो आप बोल सकते हो सर एक्चुअली आई वाज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर. सो ये हमारे पास, इनको आपको यूज़ भी करना है. ठीक है, तो ये वेदर वाले ईडीएम हो गए. फिर आप देखोगे तो कलर ईडीएम, जैसे ही टर्न्ड ग्रीन विद एनवी. अब ग्रीन विद एनवी का मतलब होता है एक्सट्रीमली जेलस. जैसे यहाँ पे लिखा है रेड लेटर डे. अगर कोई रेड लेटर डे है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है उस पर्टिकुलर, जो भी बात कर रहा होगा उनसे जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है. जैसे यहाँ पे लिखा है रेड लेटर डे, तो वो होता है स्पेशल डे. एग्जाम्पल देखोगे आप, विनिंग द चैंपियनशिप वॉज अ रेड लेटर डे इन हिज लाइफ. जैसे किसी की लाइफ में आपकी मान लो जिस दिन रैंक अच्छी आएगी, सपोज आपकी रैंक आ गई, IMCT क्लियर किया आपने और आपकी रैंक आई अच्छी, तो आप बोल सकते हो दिस इज़ अ रेड लेटर डे इन माई लाइफ, क्योंकि आपने उस दिन आपका रिजल्ट आया और आपकी अच्छी रैंक आई है. या जिस दिन आप शिप पे जाते हो या जिस दिन आप प्रमोट होते हो, तो उसको आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हो कि दिस इज़ द बेस्ट, दिस इज़ द रेड लेटर डे ऑफ माई लाइफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है. ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे एनिमल ईडियम्स अलग से मिल जाएंगे आपको, जहाँ पे हम सिर्फ एनिमल्स की बात करते हैं. और ये जो ईडियम्स इसमें मैंने एसिमुलेट करे हैं वो आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत सुनोगे आप जब आप पॉडकास्ट देखते हो. जैसे यहाँ पे लिखा पहला ईडियम है होल्ड योर हॉर्सेस. जैसे हमें कई बार बहुत जल्दी होती है ना काम करने की, जैसे कोई फॉर्म आया मैं फटाफट से भरूंगा इसको, पहले आपको देखना है प्रिपेयर हो या नहीं उस चीज़ के लिए. इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड सो यू नीड टू होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब आपको जो है पेशेंटली काम लेना है वहाँ पे. ठीक है, फिश आउट ऑफ द वाटर, जब आप फिश को बाहर निकालोगे वाटर से तो वो बहुत ट्रबल फील करेगी, बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगी. तो अनकंफर्टेबल लिखा है यहाँ पे. तो इस तरीके से एनिमल के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर ईडियम्स हैं. एट 6 and 7, 9 day वंडर, 10 to 1. बॉडी पार्ट्स की ईडियम है हेड इन द क्लाउड्स, कोल्ड फीट. अगर आप कोल्ड फीट हो, आपके पाँव बिल्कुल ठंडे हो गए तो इसका मतलब आप बहुत नर्वस और एप्रीहेंसिव फील कर रहे हो. तो इस तरीके से यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको मिलेंगे. पर्सन वाले अलग हैं, फ्रूट ईडियम्स अलग है. अच्छा, अब इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमने वेटेज में देखा था,
सो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 7 to 9 वर्ड्स उसमें लिखा हुआ था, 7 to 9 मार्क्स। तो इसमें भी 2 तरह की कैटेगरीज हैं। एक तो जेनेरिक कैटेगरी है, जेनेरिक मीन्स कॉमन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, तो ये आपको पहले पेज पे हमने डाल दिए हैं। हालांकि इस बार इसमें क्योंकि ये लास्ट एडिशन है तो इसमें हमने लास्ट ईयर के जो लास्ट ईयर यानी कि IMUCT 2025 के जो क्वेश्चन है इस बार के वो इसमें हमने ऐड नहीं करे हैं, ठीक है। लेकिन आपको पिछले साल के भी सारे मिल जाएंगे और जो एक्सपेक्टेड है, जो मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं एग्जाम में, वो इसमें ऐड करे हुए हैं। उसके बाद आगे जाएंगे तो अब 1 वर्ड में एक तो जेनेरिक था, एक यहाँ पे कैटेगरी वाइज जैसे ईडियम्स में था, सिमिलरली यहाँ पर भी हमने कैटेगरी वाइज जो है इसको अलग कर दिया। देखिए यहाँ पे है वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सन्स। पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल या पर्सन्स की बात कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। कोई किसी काम को प्रोफेशनली नहीं कर रहा है, बस मजे के लिए कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं एमेचर। तो ये पर्सन के लिए हो गया। उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, जैसे कहीं पर गवर्नमेंट है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, दैट्स कॉल्ड एनार्की। कहीं पर ऐसा है कि एक आदमी जो है राज कर रहा है सब पे, तो डिक्टेटरशिप होती है, उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। तो ये अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट्स यहाँ पर हैं। जैसे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसी वेरियस टाइप्स ऑफ स्टडीज़ हैं। आप अलग अलग चीज़ों की स्टडी करते हो तो उसके लिए कौन से वर्ड्स है, जैसे 2023 IMUCT में आया था कार्डियोलॉजी। सो कार्डिया होता है हार्ट, लॉजी मतलब स्टडी होता है, स्टडी ऑफ हार्ट को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। तो अलग अलग स्टडीज़ हैं यहाँ पे, वेरियस टाइप्स ऑफ स्टडीज़। सिमिलरली वेरियस टाइप्स ऑफ फोबियाज, किसी को पानी का डर, फोबिया होता है एबनॉर्मल फियर, किसी को पानी का डर होता है, किसी को हाइट का डर होता है, तो यहाँ पे वो सारा लिखा हुआ है, ठीक है। किसी को आग का डर होता है, पायरोफोबिया, एक्वाफोबिया, पानी का डर हो गया। किसी को बंद जगहों का फियर होता है, एबनॉर्मल फियर, जैसे ऐसे डार्क, जैसे लिफ्ट वगैरह होगी तो वो क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, तो वो सारा इसमें एडेड है। फिर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेसेस, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एवियरी लिखा हुआ है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ किलिंग्स, वेरियस टाइप्स ऑफ मेनियाज है इसमें। सो बेसिकली ये भी कैटेगरी वाइज है, उसका प्रैक्टिस सेट है। अच्छा, ग्रामर के लिए क्या था, ग्रामर के लिए हमारे पास ग्रामर सेगमेंट के लिए जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दोगे तो उसके बाद आई थिंक वो लास्ट में एडेड है, तो हमारा जो है इसी के अंदर हर चैप्टर के मैंने क्या करें, कुछ क्वेश्चन डाले हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपकी, और जिसका आंसर की भी आपको मिल जाएगा। ये तो हमने अभी वोकैबुलरी की बात करी है। ये रहा, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है एंड इट स्टार्ट्स एट पेज नंबर 387। सो आप देखो ये 10 के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने सही से कर दिए तो आई गारंटी यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड इन द इंग्लिश सेगमेंट, विच इवेंचुअली इज गोइंग टू लीड टू सिक्योरिंग अ डिसेंट रैंक फॉर यू। तो मतलब अगर आपने अच्छे से कर दिए हैं, इसमें आंसर की भी आनी चाहिए। फिर कंजंक्शंस का है, इसमें कंडीशनल्स है, प्रपोजिशंस का अलग से बना रखा है। तो इस तरीके से हमारा इंग्लिश का सेगमेंट हो जाता है कंप्लीट। तो अब अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिसमें मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर मैं वीडियो बनाता हूँ या मैं अपनी टीम को भी ट्रेन करूँगा, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट रूल्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट्स, जहाँ पे वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको समझाया जाएगा, ताकि आपको ना वो कन्फ्यूजन, वो ग्रे एरिया आपको समझ आ जाए कि वो ग्रे एरिया नहीं है, वो ब्लैक एंड वाइट ही है सब कुछ, बट इट नीड्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।